Wer beginnt mit Schreiben 6, Teil 1? Yes, sir. Ish. Okay, Raja, kannst beginnen. Sir, informal बात है. Lieber Sumit, ich habe am Morgen deine E-Mail bekommen. Das habe ich vollständig gelesen und das verstehe ich. Aber du kannst den Benutzer und dem Handy sinken, damit du nicht die hohen Handyrechnungen bekommst. Du solltest das nutzen, wenn es notwendig ist. Vielleicht deine Eltern haben nun einige Probleme und finanzielle Probleme. Deswegen könnten sie dir das Geld nicht geben. Mach keine Sorgen, mach keine Sorgen. Ich habe geniale Idee. Du kannst einen Teilzeitjob für Taschengeld machen. Als ich in der Hochschule war, arbeitete ich auch als Lehrer in dem privaten Institut. Auf jeden Fall solltest du machen. Im Internet gibt es viele Online-Teilzeitjobs, was du machen kannst. Viele Grüße. Viele Grüße, Raja. Okay, klar. So, Idee schreibt man so. Buchstaben. Und vielleicht haben deine Eltern finanzielle Probleme. Also das ist wirklich gut. Also eine positive Vorstellung. Und dann hast du auch als Freund etwas empfohlen, was er machen könnte. Machen. Als ich in der Hochschule arbeitete, als ich in der Hochschule war. सर वार होगा उसमें मैंने बोला लेकिन उसमें लिखा है So war am Ende. Arbeitete ich. इसको ढंग से लिखा करो, साफ साफ दिखना चाहिए, H है ऐसे. Auf jeden Fall solltest du machen. Im Internet gibt es viel online Teilzeitjob. Okay, Teilzeitjob verfügbar, was du machen kannst. Okay, da findest du etwas. Klar, ich habe am Morgen deine E-Mail bekommen und dann Das habe ich vollständig gelesen. पूरा कंप्लीट पढ़ा मैं उसको. ये 10 सा लग नहीं रहा, ऐसे लग रहा है दा और ऐसे कुछ लग रहा है. तो ये एस पूरा दिखना चाहिए, क्योंकि टीचर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे. नहीं दिखता तो उसको देखते हैं यार ये शायद भूल गया है ना. हम तो लिखने वाले हैं, तो हम तो उसको अलग तरीके से देखते हैं. अरे यार इतना से तो खुद ही समझ जाता, इतनी भी अकल नहीं है क्या. हम तो उसको ऐसे देखते हैं, और टीचर ऐसे सोचता है यार इसको इतनी भी अकल नहीं है क्या. फर्क है ना दोनों अकलों में. तो इसलिए हमको अलर्ट रहना है, साफ सुथरा लिखना, क्लियर कट दिखना चाहिए, गुंजाइश ही नहीं बचे. Ansonsten hast du gut geschrieben. Ja. Sir, die Frage habe ich nicht verstanden. Die Frage habe ich nicht verstanden. Hier. Yes, sir. Okay, ein Freund, eine Freundin schreibt Ihnen, dass er die hohen Handyrechnungen nicht bezahlen kann und dass ihre Eltern ihm ihr nicht mehr Taschengeld geben wollen. कि किसी दोस्त ने लिखा है कि यार मेरे पापा तो मेरा मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आ गया. जैसे मान लो हर बार आता था 300 रुपए, तो घर वाले भी दे देते थे. अब की बार यार मेरा आ गया 900 रुपए, घर वाले कह रहे हम तो नहीं देते, फोन पे ही लगा रहता है तू. सो die hohen Handyrechnungen nicht bezahlen
kann und nicht mehr Taschengeld geben wollen, कि वो ना तो उसका वो पे कर रहे कि तेरा आया है इतना, क्यों आया है तू जाने, और जो पॉकेट मनी है वो भी नहीं देना चाहते। अब उन्होंने कह दिया कि इतने दिन तुमको पॉकेट मनी देते थे, अब तू बड़ा हो गया, अब जिंदगी भर हम ही देते रहेंगे क्या, खुद कमा। सो बच्चे ने दिल पे ले ली, यार ये कैसे पेरेंट्स हैं, ये तो घर से निकाल रहे हैं मुझे, तो दिल पे ले लेता है बच्चा कभी जवान। सो दोस्त ने आपको लिखा, यार क्या करूं ऐसी सिचुएशन में, गिवन जी टिप्स, हो सकता है आप में भी हो रही हो किसी में ऐसी, गिवन जी टिप्स was sie ihr machen kann, आप उसको टिप्स दो कि तू क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में, weniger Geld für das Handy auszugeben, कि घर तुमको मोबाइल पे कम खर्चा करना पड़े, को टिप्स दो, उसको बोलो कि तू फोन है ना व्हाट्सएप पर करा कर, हाँ, या फिर कुछ भी कोई टिप आपको देनी है, या टाइल साइट आर्बाइट, ये अच्छी टिप है, पैसे कमा। Erklären Sie, warum Sie Reaktion der Eltern verstehen können या nicht verstehen können, कि तुम या तो पेरेंट्स की साइड ले लो कि यार पेरेंट्स भी देखो, तुम्हारा भाई भी है, उसको भी देना पड़ता है उनको, अब वो चाहते हैं कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स की, या तुम अब उसको भड़का भी सकते हो, अरे यार ऐसे ही है, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, नहीं देते ये, तू अपने तो जॉब ही शुरू कर दे। मैंने भी इसी चक्कर में जॉब शुरू करी है, छोड़ पढ़ाई वढ़ाई, काम करेंगे अपन तो। सो इट्स अप टू यू हाउ यू डील, बट दिस इज द सिचुएशन। machen Sie Vorschläge, wie eigenes Geld verdienen kann, कि पैसे कैसे कमा सकता है वो, उसकी टिप। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं 3 महीने पहले ही कंपनी ज्वाइन करी है, वहां पे अभी जॉब है, वैकेंसी है, मतलब यू मे ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम। Klar? Arbaj, ist das jetzt? Yes, sir. Okay, dann nächste Person. Wer hat noch über das Thema? Priya, hast du geschrieben? Sir, formal letter? Informal. Informal letter, yes, sir. I've sent it to the. But I thought the question, the letter topic is that. Also du hast falsch verstanden? Hast du falsch verstanden? Yes, sir. Okay. Yeah. So, wenn wir das falsch verstehen, dann bekommen wir 0. Wissen Sie das? Wir bekommen dann keine Punkte. Keine Punkte bekommen wir. Leider. Aber kein Problem. Du kannst aber trotzdem laut lesen. Lies mal, lieber Thomas, wie geht es dir? Wo ist die Fragezeichen? Wo ist das Zeichen? Fehlt. Question Mark नहीं लिखा. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Gestern ging ich in ein Einkaufszentrum. Das ist vielleicht anders. Okay, तुमने कुछ और का ही लिख लिया. Sir, I understood that he wants to buy a new mobile, but it is costly and his parents is not giving him money. So Okay. Das hast du verstanden. Das ist dann falsch. Dann bekommst du bestimmt 0. Okay, nächste Person. Wer ist noch da? और किसी ने नहीं लिखा ना? सरदार? Then du solltest laut lesen. Lieber Ashok, ich denke, dass du etwas tun musst. Solltest du zuerst weniger mit deinem Handy telefonieren und kostenlos App wie WhatsApp nutzen. Ich verstehe die... Solltest du की करो, do solltest. Because it's a normal sentence. Otherwise, it becomes a question. Ich verstehe die Reaktion der Eltern. Alle Eltern wollen, dass seine Kinder selbst Geld verdienen. Ihre Kinder. Plural. Ihre आएगा. Ihre Kinder selbst Geld verdienen. Ich schlage dir vor, dass du Teilzeit arbeiten kannst. Wie ich
wie ist verdiene? Du kannst auch in Firma arbeiten. Bitte schreib mir bald. Viele Grüße. Du kannst bei einer Firma arbeiten. Okay. Bitte schreib mir bald. viele Grüße. सरदार सिंह लिखने की जरूरत नहीं है, सरदारी लिखना है इसमें, राइट? क्योंकि वो जो फॉर्मल है उसमें सरदार सिंह लिखना है. ओके, क्लास ये 10. सर एक क्वेश्चन है, इसमें ये लिखना मैंडेटरी है लास्ट में शायद नियर बार? जरूरी नहीं है, ये जहाँ पे आपको लगे इसमें जरूरत नहीं थी वैसे, है ना? हाँ, एडिशनली लग रहा है ये, है ना? इसमें आप ऐसे लिख सकते थे, मार्क नियर काइंड जोर्गन alles wird gut. तो सर जो ऐसी मेल होती है जिसमें कोई परेशानी हो या कोई समस्या हो या उसको अपन की हेल्प चाहिए, तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ अपन लिख सकते हैं या रेडिमेटल हो ऐसे? हाँ, कुछ रेडिमेटल टाइप में लिख सकते हैं. मार्क नियर काइंड जोर्गन kommt साइड kommt rat, कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा. ये पेरेंट्स बिहेव ऐसा है कि थोड़ा जॉब वॉब करने लगेगा, they will be also happy with you. Das Verhalten der Eltern ist auch einmal so. Sie ärgern sich, wenn wir also viel telefonieren. Die Eltern wollen, dass wir zeitlich auch mit dem Geldverdienen beginnen. Das ist ja in Ordnung. Ja, du solltest sie nicht falsch verstehen. तुमको पेरेंट्स को बहुत गलत तरीके से नहीं सोच देखना चाहिए. Sie geben momentan Geld nicht, aber das ist schon okay. Du kannst auch mit WhatsApp telefonieren. Ja, so kann man. Ich kann dir auch nicht viel Geld geben. Wenn du brauchst, ich kann dir ein bisschen Geld leihen, aber nur einmal. अब ज्यादा ही संकट में है तेरे, 700 का बिल आ गया, तू फंस रहा है, बंदी हो गई कौन, तो वहीं पर दे देता हूँ एक बार तेरे को 700 तो. Aber du solltest ja sobald wie möglich mit der Arbeit beginnen. ऐसे करके थोड़ी तसल्ली दे सकते हो, थोड़ा पैसा भी दे सकते हो चाहो तो, बट राय दे दो, दैट इज बेटर. नहीं तो फिर अगली बार, अभी पेरेंट्स नाराज है, फिर तुम नाराज होते घूमोगे. तो अच्छी सी राय दे दो उसको, दैट इज बेटर. Klar? Aber sehr gut geschrieben. Kürze in der Witze. तो सर ये मेल होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 100 मार्क्स के हैं तीनों. अब वो गुथ इंस्टीट्यूट वाले इसको अलग तरीके से सेपरेट डिवाइड करते हैं इसको, है ना? लेकिन अल्टीमेटली 100 में से ही देना है उनको. तीनों से कितने मार्क्स का है ये शुरू में आया था, आपको वापस दिखाऊंगा एक बार, है ना? परफॉर्मा दिखाऊंगा इसमें शुरू में जो आया था ना. ओके, नेक्स्ट टाइल 2 एक्सट्रीम स्पोर्ट आइटम. सर eigentlich dieses Teil 2 finde ich herausfordernd. Okay, checken wir, was die anderen geschrieben haben. Ja, Raja, Teil 2. Yes, sir. Meiner Meinung. Extreme Sports Art ist sicherlich ein Abenteuer, in dem man viel Spaß haben kann. Aber das ist zu gefährlich und man kann sterben. Und das kann nicht sehr einfach gemacht werden. Übrigens gibt es unterschiedliche Extreme Sports Arten, beispielsweise Eisklettern, Heulen, Tauschen, Cliff Diving, Wingsuit, Flying und so weiter. Zuerst sollte man trainiert sein, bevor man das macht. Also man braucht eine gute Leitung, den Ausgleich, damit man das ohne Panik und ohne Angst machen kann. Das Üben dauert lange Zeit und Risiko ist auch am höchsten. Als ich Kind war, dachte ich darüber nach und ich genieß viel, während ich diese Tätigkeiten im Himmel sah. Aber heutzutage haben wir moderne Technik oder Technologie.
Man kann das in einer guten Weise erledigen. Trotzdem ist das mir zu gefährlich. Alles klar. Alles klar. Okay. Ja, gut. Also das ist ernsthaft. Satz 3, 4 ist nicht in Ordnung, aber indem man viel Spaß haben kann. Und das ist dann Punkt. Bevor in ist der Komma. Komma Yes, तो sir. Komma है. कोमा ही है ना ये Yes, sir. Komma. ये हमको भी कोमा ही लगना चाहिए und dann haben kann hier braucht man dann Punkt यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए Okay, sir. und then Actually आबर है, आबर से शुरू किया हुआ है तो आबर कोई बात नहीं, गलत नहीं है आपर से नया सेंटेंस बनाना, बट लेकिन ए बड़ा आएगा सर. बड़ा तो आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ सेंटेंसेस को. ओके. इतना रबड़ की तरह उसको बढ़ा दिया, पता ही नहीं चले कि वो कहां से शुरू हुआ है ना, कंफ्यूज होता है आदमी. तो ये ऑलरेडी 2-3 लाइन का हो चुका है पहला सेंटेंस, तो 2-3 लाइन का हो गया तो उसको खत्म करो. बेटर तो ये रहता है 2 लाइन भी पूरी नहीं होनी चाहिए सेंटेंस में, 1 लाइन में 1 सेंटेंस खत्म करो. बढ़ गया, बात कहनी है तो 2 में खत्म करो. अब तीसरी में भी अपना सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा और उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है फिर. ठीक है, सो बेटर मेक ए न्यू सेंटेंस. Aber das ist zu gefährlich. आप ऐसे भी कह सकते हो das halte ich für gefährlich. मैं तो इसको बहुत डेंजरस मानता हूँ. halten. Ich halte das für. halten für adjective. मैं मानता हूँ इसको. मैं इसको खतरनाक मानता हूँ. das halte ich für. das मायनों में है ना अपनी ये. das halte ich für gefährlich. आप किसी चीज को पॉजिटिव मानते हो तो यहां लिख दो फिर पॉजिटिव. किसी चीज को नेगेटिव मानते हो तो das halte ich für negative. जनरली इसके बाद में आप एडजेक्टिव लेते हो. das halte ich riskant. रिस्की मानता हूं मैं इसको. रिस्कांट. ओके, और 10 का und man kann sogar sterben. फिर das kann man. das की स्पेलिंग क्या है? सर डी ए. सर वो इसमें एन लग रहा है, दूसरा ही बना ली. और तुमने लिखा क्या है? das kann nicht sehr einfach. das में इसमें एन लिख रहा है, लग रहा है, लेकिन तुमने लिखा क्या है? सर मैंने तो ऐसे लिखा, मतलब एस लिखा है मेरे लिए, वो लग रहा है ऐसा ऐसे एस. लिखना चाहिए. तूने शायद गलती से डबल एस लिखा है मेरे ख्याल से. गलत है सर. यस. ओके, तो सिंगल एस लिखना है एकदम. das kann nicht sehr einfach gemacht worden. इसका कोई सेंस ही नहीं है. सर दैट कैन नॉट बी डन वेरी इजी. मतलब आसान नहीं है उसको करना. worden का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे. कैन बी के सेंटेंस में सर कैन बी. ना, ऐसा नहीं करते. Ja. Übrigens gibt es unterschiedliche Sportarten, beispielsweise. Ja, das ist gut, dass du einige Beispiele gibst. It's good. कुछ एग्जाम्पल दिया आपने, ये बहुत अच्छी बात है. Dann kann man das besser verstehen. Und dann next sentence देखो, diving und ये सारे नाउन है, कैपिटल लिखो इसको. ये विंग सूट, फ्लाइंग. यस सर. And then soonest, soonest. This is a new sentence. It should be capital. Z capital होना चाहिए यहाँ पे. दामिट से पहले जो कोमा है और सभ्य तरीके से कोमा बनाओ. ओने, ओने का एच और एन एक से ही दिख रहे हैं.
ये फर्क आपको खुद को भी कभी कभी लगता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, इसको ठीक करना है। इन हार्ट इज देयर गुड, जो लिखा है मसाला बढ़िया है, मार्क्स नहीं कटे। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि कई कई बच्चों के यहाँ पे ई लैंग्वेज स्टूडियो में 100 में से 100 आए हैं, राइटिंग में और स्पोकन में 100 में से 100, और एक बार नहीं कई बार आए हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको इंप्रूव करती हैं। ओके, नेक्स्ट है परजोन बेटे, Ganesh sir, या गेरने। Extremsporten sind immer beliebter zu sehen. Ich sehe Extremsporten jeden Wochenende, aber es ist sehr gefährlich. Menschen, der Extremsporten spielen, trainieren sie sehr. Sie tragen Schutzequipment schon während des Spiels. Meine Eltern erlauben mich nicht, Extremsporten zu spielen. Extremsporten sieht einfach und leicht aus, aber es ist sehr schwieriger. Es braucht fleißige Menschen und es braucht auch jahrelange Übungen oder Praxis. Nach Redewendung, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Also nach meiner Meinung, wenn wir Extremsporten spielen wollen, müssen wir richtige Training machen. Sonst würde es Lebensschaden und erschrocken. Ich mache hier Schluss. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. ओके, फिलन डांग को आपने क्या लिखा है? सर वो ई एक्स्ट्रा लग गया। हाँ, उसको नहीं लगाना है ना, फिलन डांग यही खत्म होना चाहिए। या ओके, और डांग के फिर आपने एग्जाम काइट। ओके, ये बोलने में करते हैं, ये लिखते नहीं है जनरली। अब ये अवॉइड ही कर दो दोनों, नॉट रिक्वायर्ड। इश्माखेयर श्लॉस ये भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, बोलने में चलता है ये सब, लिखने में नहीं चलता। ओके सर। biggest training und so Ideen sind gut. Es sind फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, ये ई के पॉइंट लगाया है और एस के पॉइंट लगाया है। सर ईएस मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में एक्सट्रीमस्पोर्टेन के लिए बोला है। ऐसे नहीं करना, इतना आलस नहीं करना कि पहला वर्ड ही शॉर्ट में निपटा दिया। लिखना है और फिर जी लिख दो अगली बार से। एक्सट्रीम स्पोर्ट आर्टन, स्पोर्टन कर दिया एक तो आपने, स्पोर्टन नहीं है, एक्सट्रीम स्पोर्ट आर्टन। पहली बार तो पूरा बताओ कि हमारे जो स्वदेशी प्रसाद सिंह सीताराम, अगली बार लिख दो कि ही, पहली बार पूरा नाम लो उसका। ओके सर। या ओके, नहीं तो एक्चुअली क्या ये कंफ्यूजिंग है कि वो ये क्या है भाई, क्या हो सकता है, ये आदमी दिमाग लगा रहा है कि ये एस तो नहीं है कहीं। सर एक्चुअली ये मैंने रफ में लिखा था, फिर मैंने सोचा था क्योंकि इसमें बहुत कटिंग भी हो गई थी कि मैं एक प्रॉपर आपको फेयर लिख के भेजूंगी, बट वो मैं लिख नहीं पाई। alles klar. ये मैंने अपने समझ के लिए लिखा था। Jetzt verstehe ich. Okay, jetzt verstehe ich. Ja. Jetzt geht es zu sehen, wie sehr es ist. Am jeden Wochenende, jo. Aber es ist sehr gefährlich. Gefährlich Adjektiv है कि noun है? Adjective. So small होना चाहिए ना, gefährlich. Always. So capital लिख। हेलो हेलो आंसर लिखूं सर। एक्चुअली सर फोन में बैटरी 1% है तो कभी भी मतलब लैप हो सकता है। क्या? अच्छा, जी। आपकी बैटरी मोबाइल की, ओके ओनली 1% है। ओके ओके। सो अभी वो नंबर नहीं आए तो उसका एक नंबर एक्स्ट्रा करना है। उन्होंने मेरे को बोला था ये लास्ट बट चेक करके बताता हूँ। सो तुम्हारे पास अभी कॉल नहीं आए ना, देन 1 एक्स्ट्रा। सर एक्चुअली मैं आउटसाइड था तो मैं भी घर पहुंचने में ओके टाइम ओके लगेगा। kein मैं Problem. घर पहुंच Dann- के चार्ज कर लूंगा। dann diskutieren wir, kein Problem. ओके। Jeden Wochenende, also am jeden Wochenende. Ansonsten wäre das jedes Wochenende. So sir the correct is jedes Wochenende. Yes, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो jedes. Accusative होगा तो भी jedes Wochenende ही आएगा। इस ये है एक्सट्रीम स्पोर्ट आर्टन
jedes Wochenende, jedes आएगा या फिर am jeden Wochenende. Aber es ist sehr gefährlich. So the relative starts. मेंशन का डेयर, मेंशन तो प्लूरल होता है, एक तो स्पेलिंग चेक करना मेंशन की, ठीक है, मेंशन की स्पेलिंग चेक करना, एंड देन मेंशन इज प्लूरल हियर, मेंशन दी एक्सट्रीम स्पोर्ट आर्ट एंड ट्राइबन trainieren sich auch gut, sowas. Sie tragen Schutzequipment, okay, so während des Spiels. ये कितने पॉइंट लगाए पता नहीं चल रहा इसमें, है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसे लग रहा है एक्स्ट्रा लग गई, गलती से पेन टिक गया, ऐसा कुछ लग रहा है. Meine Eltern erlauben mir nicht, erlauben दाटिव लेगा, erlauben mir nicht. Okay, sir. एक्सट्रीम स्पोर्ट आर्ट एंड सुत्राइबन, स्पोर्ट के साथ ट्राइबन आता है जनरली, स्पोर्ट माखन, स्पोर्ट ट्राइबन, स्पीलर नहीं बोलते स्पोर्ट के साथ. एक्सट्रीम स्पोर्ट sieht einfach und leicht, you want to say maybe leicht, einfach is enough, aber es ist sehr schwer oder schwieriges, this is wrong here spelling. Es braucht Fleiß. What does it mean? Sir, hardworking people, flies is. So flies इसकी स्पेलिंग गलत है, इसको वापस देखना है ना. Flies is डबल एस आएगा, SSIG. एंड देन मेंशन बीच में भी आ रहा है तो कैपिटल आएगा, इट्स ए नाउन. Es braucht auch Jahre. Praxis. So jahrelange Praxis. Jahrelang, okay, jahrelang Übung oder Training. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut होता है, ये गिबाउट नहीं होता, erbaut. जो फिक्स है ना वो वैसा का वैसा ही लर्न करना पड़ता है ना. जैसे गिव आउट ही तो होगा सर, बिल्ट मतलब erbaut होगा, erbaut होगा, देखना वापस. Okay, sir. है ना. कई बार क्या है कि बहुत सारे उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन हम वो यूज करेंगे जो फेमस है, पॉपुलर है. जैसे मान लो कोई बोल दे कि यूबुंग मार्क्ट den Meister, और कोई इसको बोल दे कि यूबुंग मार्क्ट einem Meister, तो वो नहीं चलेगा. वो जो चलता है वही लेंगे हम लोग, है ना. ग्रामेटिकली दूसरा भी सही हो सकता है, लेकिन हम वही लिखेंगे जो एक फिक्स फ्रेज है, क्योंकि वो सिटाट हो गया है, वो कोटेशन हो गया, वो कोटेशन टाइप हो गया. Also nach meiner Meinung, also के बाद में कोमा और nach meiner Meinung के बाद में वर्ब. nach meiner Meinung sollten wir Sport, Art und Treiben oder sowas. nach meiner Meinung के बाद में वर्ब आनी चाहिए, उसको पार्ट ऑफ द सेंटेंस बनाओ. कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ nach meiner Meinung ऐसे करके छोड़ देते हैं, फिर नया सेंटेंस बनाते हैं. ऐसे नहीं करना. nach meiner Meinung ist das wirklich gut. Jones würde es und erschrocken oder erschrecken आना चाहिए würde के साथ, infinitive form इसमें है. या सो ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से, छोटी मिस्टेक्स जो है वो तुरंत प्रभाव से रिमूव होनी चाहिए, अभी हटनी चाहिए वो. अदरवाइज तो कभी भी एग्जाम आएगी फिर होगा नहीं. उनको एकदम दिल पे ले लेना है कि ना अब अगली बार ये मिस्टेक ना हो. जैसे एक बार लिखने के बाद में ये चेक करो, लिखने के बाद में आपने जो भी लिखा है उसके बाद में एटलीस्ट ऐसे तो देखना चाहिए आपको कि मैंने एडजेक्टिव कहाँ किया है, मैंने वर्ब को सेकंड पोजीशन पे लिखा है क्या. मतलब 4-5 चीजें देख लिया करो पूरे टेक्स्ट में कि मैंने वर्ब को हर बार सेकंड पोजीशन पे लिया है कि नहीं लिया है. मैंने एडजेक्टिव जहां भी यूज किया वहां पे एडजेक्टिव की एंडिंग सही लगाई है कि नहीं लगाई है. मैंने पेज स्वाई कहीं यूज किया है क्या. मैंने क्लाइन और ग्रोस का ध्यान रखा है कि नहीं. क्लाइन, ग्रोस, किसी स्पेलिंग में मुझे डाउट है क्या. ऐसे 4-5 चीजें देख लो.
अब ये अलग बात है कि क्लाइन ग्रोस आप देखोगे तो फिर आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि भाई आर्टिकल के बाद में कोई भी वर्ड आ रहा है तो वो कैपिटल आना चाहिए आर्टिकल के बाद में। आर्टिकल मतलब आइन के बाद में, माइन के बाद में, देर दी दास के बाद में, काइन के बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में जनरली एक नाउन आता है, वो कैपिटल है क्या? एडजेक्टिव को तो मैंने कैपिटल नहीं लिख दिया है। नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहला लेटर कैपिटल है क्या? तो ये कैपिटल वाली बात। अभी लग रहा है कि इतनी सारी चीजें देखूंगा, लेकिन 10-5 बार देखोगे ना तो दिमाग में माइंड सेट ही हो जाएगा कि हाँ। सो ये अपना जो भी टेक्स्ट है उसमें एक नजर मारा करो, खुद ही चेक कर लो एक बार। कई चीजें आप खुद ही चेक कर लोगे तो कितनी बढ़िया बात है, अपन ने खुद ही मिस्टेक निकाल ली। सो माइंड भी फिर हर बार क्रिटिकली देखेगा और करने ही नहीं देगा गलती। ओके ओके सर। नेक्स्ट। Kann ich या बेटा Meine Meinung ist über Extremsportarten werden immer bleibt ganz anders. Für mich Extremsportarten ist sehr gefährlich, aber das ist auch interessant. Wenn wir das sehen, dann fühlen wir so gut und wir probieren auch das zu machen. Aber das ist nur gut zu sehen, nicht für machen, weil das unser Leben beenden kann. Es gibt viele Extremsportarten, zum Beispiel Bergfahren, Skateboardfahren und so weiter. Heutzutage ist Bergfahren sehr bekannt. Viele Junge gehen zu Bergen und wetten dort manchmal verloren sie ihr Leben auch. Also das ist nicht eine gute Idee. Gehen in die Bergen. Gehen in die Bergen. क्योंकि पहले से तो पहाड़ों पे नहीं हो ना, जा रहे हो कहीं से तो आखुजाटी होगा। Gehen in die Bergen। मैं पहाड़ों में टाइम बिताता हूं तब तो कह सकते हो इंडियन बैर्गन, लेकिन जब जा रहे हो आप तो आखुजाटी होगा। और फॉरलोरन कैसे होगा? Verlassen, sir. Verlassen. जिंदगी खो देते हैं ऐसे। Yes, sir. स्टैर्बन। पहला सेंटेंस ही देखो आप, पहला सेंटेंस Meine Meinung ist über Extremsportarten werden immer beliebter ganz anders। कोई तुक नहीं है इस सेंटेंस का। Meine Meinung ist über, ये इतना तुमने जबरदस्ती जोड़ दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए था, Extremsportarten werden immer beliebter। मतलब ये पॉपुलर से पॉपुलर होती जा रही है। या फिर माइनर माइनुम नाक वेर्डन, उसी को पार्ट बनाना है सेंटेंस का, वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे। वेर्डन इमर बेलिप्टर। या फिर माइनर माइनुम नाक इष्ट, इष्ट नहीं जिंड आना चाहिए। Meine Meinung nach sind और फिर सीधा ही Extremsportarten immer beliebter geworden। sind geworden करते तो चल जाता, समझ रहे हो ना? sind geworden करते तो प्रेजेंट परफेक्ट मान लेते अपन कि वो पॉपुलर हो चुकी हैं। ऐसे या Sportarten, Extremsportarten, Extremsportarten। जैसे एक्सट्रीम आपने लिखा और फिर स्पोर्ट आर्टन आगे वाली लाइन में लिखना है, तो ऐसे कुछ हिंट देना है। स्पोर्ट आर्टन, या तो यहां हिंट तो दो ये उसका ही पार्ट है, देना पड़ता है ऐसे। केवल आगे वाला ही दे दो भले ही, ऊपर वाले जरूरत नहीं है। स्पोर्ट आर्टन मतलब इट इज द पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वन। Sehr gefährlich, aber das ist auch interessant. Wenn wir das sehen, dann fühlen wir uns so gut. Und wir Probieren. To try. oh probieren, देखो पी केवल तुमको पी लग रहा है और किसी को पी नहीं लग रहा।
probieren, ये अच्छे से पी लगना चाहिए ऐसे, wir probieren. Auch das zu machen, aber das ist nur gut zu sehen, nicht für machen. फिर while आ रहा है तो उससे पहले कॉमा लगाना है. While das unser Leben beenden kann. Okay, ja, richtig. Es gibt viele zum Beispiel कैसे लिखते हैं? zum Beispiel. तो ये छोटा और ये बड़ा, ये साफ दिखना चाहिए, और फुल स्टॉप इसके साथ में पुंक्ट सा भी लगता है ये. Beispiel, ये भी है ना? तुम्हारा वाला बीटा सा लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है. तो उसको फुल स्टॉप और लगा दो साथ में ना, Punkt. Bergfahren, Skateboard, fahren und so weiter. Heutzutage ist Bergfahren sehr bekannt. Viele Junge gehen, viele Jungen, लड़के, युंगे का मतलब होता है लड़का, लेकिन फील कर दिया तो युंगन होना चाहिए, और बल्कि आपको बोलना चाहिए युगेंडलिश है, यूथ. एक लड़के की बात थोड़ी कर रहे हो, युंगे मतलब बॉय होता है. गेन सू बैर्गन की जगह होगा इन दी बैर्गन. und Wittenrot manchmal verloren कर दिया, यहाँ होना चाहिए verlieren sie ihr Leben oder kommen ums Leben oder sterben leider. Das ist nicht eine gute Idee की जगह कर दो सीधा ही das ist keine gute Idee. nicht eine का मतलब तो काही नहीं है, das ist keine gute Idee. Ja, gut geschrieben. Also Schrift sollte noch verbessert werden. राइटिंग थोड़ी और इम्प्रूव कर लो, अच्छा लिखा है बाकी. Okay. Next, haben wir noch was? Jetzt Teil 3. geschrieben? वो ग्रुप में भेज दो, पढ़ेंगे. पढ़ो. सर फॉर्मल लेटर. फॉर्मल पढ़, राघवेंद्र पढ़ना है, जो भी लिखा है पढ़ दो, डरा करो मत. नहीं लिखा. ओके, थर्ड वन फॉर्मल. Als Hausaufgabe sollen Deutschkurs einen Text schreiben. Okay, wer will? सर तनिष. Ja, gerne. Sehr geehrte Frau Reuter, ich heiße Priya Gupta. Ich bin Studentin in Ihrer Deutschkursklasse. Seit ich Kopfschmerzen 2 Wochen habe, deshalb konnte ich nicht die Hausaufgabe machen. Ich hoffe, dass Sie mich verstehen. Bitte geben Sie mir Ihre Personal-E-Mail-Adress, damit konnte ich meine Hausaufgabe online heute zuschicken. Ich warte auf Ihr positive Antwort. Dankeschön. Mit freundlichen Grüßen, Priya Gupta. Okay. Sehr geehrte Frau Reuter, ich heiße Priya Gupta, ich bin स्टूडेंटिंग में एस स्मॉल है कि कैपिटल? सर ये मैंने स्मॉल किया है, लेकिन होना चाहिए कैपिटल. ओके. स्टूडेंटिन नाउन है ना ये. Ich bin Studentin in Ihrem Deutschkurs. In Ihrem Deutschkurs, और उसके साथ में आगे लिखना आपको क्लास 8B whatever आपको लिखना है, बट इन Ihrem Deutschkurs. इश जाइट नहीं आएगा इसमें. आप ये कहना चाह रहे हो कि सिंस आई हैव हेडेक. सिंस
नहीं सर, since 2 weeks I had headache. सिंस 2 वीक्स, सिंस 2 वीक्स अगर तुम लिखती तो वर्ब लास्ट में क्यों लाती? That's why वो नहीं तो ऐसे ही लिख देती ना, जाइट स्वाई वोखन हाबिस कॉप्समैथसन। बट तुमने ये लिखने की कोशिश करी है जो इंग्लिश वाला होता है, चूंकि सिंस आई हैव हेडेक, तभी तो वर्ब लास्ट में लेता है आदमी। लेकिन इसमें जाइट नहीं आता, जर्मन में डा आता है। डा का मतलब जाइट वाला वो इंग्लिश वाला निकल जाता है, डा। चूंकि डा इस जाइट स्वाई वोखन Kopfschmerzen habe, komme ich nicht zum Unterricht। या फिर जाइट आपको वो लिखना हो कि इस habe since 2 weeks, तो इस habe जाइट नॉर्मल, ये वाला नहीं लिख, आपने मान लो वो वाला ही लिखा है, तो उसको जो प्रीपोजिशन के तौर पे आपने किया है, तो आप बोलो ich habe seit 2 Wochen Kopfschmerzen, deshalb konnte ich zum Unterricht nicht kommen। Konnte ich nicht konnte ich die Hausaufgabe nicht machen, okay, nicht die Hausaufgabe machen। Ich hoffe, dass Sie mich verstehen, okay, Sie meine Lage verstehen, okay, Sie mich verstehen। Bitte geben Sie mir Ihre persönliche E-Mail-Adresse। भाई पर्सनल क्यों चाहिए? ऑफिस का देंगी तो नहीं चलेगा क्या? पर्सनली से पर्सनल मांग रही हो, पर्सनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ऑफिस का स्कूल का दे ही रखा हो उनको। आप तो इतना ही बोल दो कि मेल आईडी दे दो, अब उनको जो भी वाजिब लगेगा दे देंगे। पर्सनल देना है कि ऑफिशियल देना है? सर मेल आईडी तो ऑब्वियसली है ही मेरे पास ना, तभी तो मैंने मेल भेजा है। तो फिर पर्सनल क्यों मांग रही हो? सर जैसे हम आपको भी कभी कभी भेज देते हैं ना पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना, तो ग्रुप पे नहीं भेजते, तो मेरे दिमाग में यही था आइडिया कि ये मैंने इनके इंस्टीट्यूट के ईमेल पर मेल किया है कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको पर्सनली भेज देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो आप तो मेल करके उनको आप ये कह सकते हो कि मैं मेल पे ही भेज दूं क्या आपको अपना होमवर्क, है ना? ये तो वास्तव में इंटरेस्टिंग आइडिया कि ऑलरेडी मेल ही कर रहे हैं और हम मेल आईडी मांग रहे हैं, तो अभी आया मेरे भी दिमाग में। सो एड्रेस है मेल, सो मेल एड्रेस है। एड्रेस की स्पेलिंग होती है एडी, ये वाला, और ये नाउन आएगा। ADD वाला जो है वो इंग्लिश में लिखते हैं बनना, और ये एड्रेस है बोलते हैं हम इसको, ईमेल एड्रेस है। Ich warte auf Ihre positive Antwort। Antwort, die Antwort होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा Ihre, एंडिंग भी लगेगी, पॉजिटिव है, Antwort। Ich warte auf Ihre positive Antwort। Meine Hausaufgabe, Hausaufgabe में H कैपिटल आएगा कि स्मॉल? Online heute zu schicken। Ich warte auf Ihre positive Antwort। Dankeschön, mit freundlichen Grüßen, Pia Gupta। Okay, yes। गुप्ता का जी भी सही लिखा करो बड़ा, ऐसे, है ना? सर वो बड़ा ही है, वो थोड़ा घूम के वो लेट गया, रेस्ट करने लग गया, ऐसे नहीं, उसको एक्टिव रखना है। नो, मजाक कर रहा हूँ ये तो मैं, बट ईमेल में वो 40 वर्ड में लिखनी होती है, तो वहाँ पर अगर बड़ी लिखता है या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ी छोटी का कोई नहीं है एक्चुअली। ये मोटा मोटा आइडिया इन्होंने दे रखा है कि 40 वर्ड्स होने चाहिए, तो 40 के आप 50 लिख देते हो, 45 लिख देते हो, चल जाएगा। 5-4 कम ज्यादा चलेगा। 40 का पूछा और आपने लिखा है 25 का, तो ये नहीं चलेगा। 40 का पूछा और आपने लिख दिया 60-70, तो नहीं चलेगा, है ना? तो इसके आसपास ही होना चाहिए, कोई एक आध वर्ड का एकदम नाप तोल के भी नहीं चले। हाँ, लेकिन बस थोड़ा बहुत 2-5 वर्ड का चलता है, नो इश्यू। एक आध सेंटेंस एक्स्ट्रा, हाँ 5-7 लाइन में ही हो जाता है 40 का तो।
बिल्कुल टू द पॉइंट. एनीबडी एल्स? Yes, sir. Kani, sir. या बेटा. Sehr geehrter Frau Rauter, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Es tut mir sehr leid, ich kann nicht nächste Woche zum Unterricht kommen, weil ich viel Arbeit habe, aber ich kann meine Hausaufgabe fertig machen und ich schicke Ihnen meine Hausaufgabe bei E-Mail oder WhatsApp. Am Wochenende mit freundlichen Grüßen, Abbas. जैसे बाई ईमेल ऐसा इसमें सीधा बाई बाई इंग्लिश का लग रहा है ना. पर ईमेल होता है. पर ईमेल इसी के इन पर मेल. पर ईमेल. ओके. Und Moment. Moment. Chicken noch einmal. Sehr geehrter कर दिया. देखो फ्राउ को गेरटर कर दिया. गेरटर थोड़ी करेंगे फ्राउ को. गेरटर हटा कैसे दूं? नंबर काटूंगा मैं तो. जेर गेरटे करना है उसको, है ना. जेर गेरटे फ्राउ रॉयटर. आपने रॉयटर का ईआर देख के तो नहीं कर दिया कहीं? नहीं सर. नहीं. ओके. Significant. वी गेट अ सीनन. वी गेट अ सीनन जब आपने किया तो वी स्मॉल किया कि कैपिटल? Small है सर. इसको स्मॉल लगना भी चाहिए. ये ऐसे स्मॉल नहीं है ना. छोटा एक पंख काटो इसके. वी गेट अ सीनन. ये क्वेश्चन है कि नहीं है? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी दिखना चाहिए. वी गेट अ सीनन. मी गेट अ स्कूट. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. इसके आगे कुछ बोलो तो सही. उसी सेंटेंस में आगे बोलना पड़ेगा कोमा करके. सॉरी कि मैं आपको वो नहीं भेज पा रहा हूँ. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht nächste Woche zum Unterricht kommen kann. अच्छा दास नहीं. अच्छा अलग से सेंटेंस बनाया है. Okay, ich kann nächste Woche, ich kann nicht nächste Woche, kann nächste Woche zum Unterricht nicht kommen, weil ich viel Arbeit habe. Aber ich kann meine Hausaufgabe fertig machen und ich schicke Ihnen mein Hausaufgabe. Okay, मतलब हम खुद ही समझ जाएं इसको. Hausaufgabe खुद नहीं समझेंगे. लिखना है तुमको, है ना. और meine हाउसऑफगाबे दी होता है तो मायने हाउसऑफगाबे कर रहा है और पूरा लिखना है. और पैर ईमेल आएगा, है ना. पैर ईमेल. ऑर्डर व्हाट्सएप. हाँ व्हाट्सएप की स्पेलिंग में गलत है. व्हाट्सएप से नहीं भेजना, वो मेल लिखना. हम वो खानेंगे. और उसके बाद में फुल स्टॉप. मिट फ्रेंडलिशन ग्रूशन. मिट फ्रेंडलिशन ग्रूशन में ग्रूशन की स्पेलिंग गलत है. उमलाउट आना चाहिए. उमलाउट आना चाहिए. Klar? Yes, sir. Yes. So ist es. Jetzt hören wir nach ein bisschen. Du hast auch geschrieben? Dann kannst du auch sagen. Bitte schon. Sehr geehrte Frau Reuter, leider hatte ich gestern Abend einen Unfall und musste ich sofort ins Krankenhaus gehen und fahren. Deshalb kann ich nächste Woche nicht zum Unterricht kommen. Wenn Sie mir erlauben, könnte ich Ihnen die Hausaufgabe bis Montag यहाँ पे कुछ per email schicken. इस वाटे auf Ihre Antwort mit freundlichen. Very good. Short and sweet. अच्छा लिखा है. इस वाटे और फिर antwort के बाद में full stop है कि नहीं? नहीं होना चाहिए. खत्म होना चाहिए. Okay, good. Leider hatte ich gestern Abend
उनफल बेकुमत सर यहाँ पर लिख सकते हैं या only for Hatte ist Unfall haben is enough. और ना यहाँ पे रिसीव noun- थोड़ी किया है, रिसीव थोड़ी किया, एक्सीडेंट हुआ है बस. इस hatte Unfall. Gestern. Gestern Abend करो तो इसको देखो. Gestern और Abend ये दोनों स्मॉल लिखो, और अगर ऐसे लिखते हो तो, या फिर Gestern am Abend फिर कैपिटल. Gestern Abend एक साथ आता है तो ये एडवर्ब की तरह काम करता है फिर ना, टाइम एडवर्ब, फिर दोनों स्मॉल आएंगे. गुड, बाकी सर कोई mistake? बढ़िया, अच्छा लिखा है एकदम, मस्त रहो.